Hello everyone, welcome to yet another episode brought to you by Galgodia's Podcast Club. I am your host Pragya Shah. Imagine handling biggest of the biggest event with no fundings. Sounds impossible, right? But there is a team behind it which turns ideas into impact and connections into opportunities. Today we are going to dive into the power behind the big events of Galgodia's University. So please welcome the sponsorship club. Sir and ma'am, I would really like to introduce you. So, hey Pragya, I'm Jyotsna Yadav and I'm head of sponsorship team. I'm in third year of agriculture. That's it. So please. Hello Pragya, my name is Karthik Gupta and I'm currently pursuing DBA in BFSI from Galgodia's University and heading sponsorship team in Galgodia's University. Really proud that I'm leading here collaborations in the events. Brands, each and every brand come to the university really means us a lot. So I'm really proud that I'm leading those brands, leading those collaborations here in the university. So that's it for my introduction. So I would like to ask you a question, and that is, as you said that you all handle the brand and the companies which comes here for the event, you invest in them. So I mean, in the sponsorship club, how do you manage to join and to make the dedicated sponsor team for yourself and for your club? You want to ask ki how we bring sponsors and how we connect to them? I want to ask you कि I mean basically अब तक आपने sponsorship की जो आपका जो पूरा क्लब है उसमें आपने अपनी dedicated टीम को अब तक कैसे join करके रखा है so that they work for you? Basically, this is not the opportunity which encourages them to be here. Really, an opportunity can be everywhere, but the environment of the club. We always try to keep the environment of the club, the environment of the team very chill, very engaging. वो लोग हमसे डायरेक्टली आके बात कर सकते हैं. वो लोग हेड्स के पास जाने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं और एक हायरार्की भी मेंटेन होती है एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोफेशनल. बट व्हेन दे आर नॉट प्रोफेशनल, व्हेन वी आर नॉट ऑन अ प्रोफेशनल नोट, वी आर सिटिंग, सो वी आर वेरी मच चिल, वी आर टॉकिंग टू देम इन अ वेरी फ्रेंडली वे. बिकॉज हम लोगों को एक पोजीशन मिली है एंड दैट इज अ थिंग कि रिस्पेक्ट मेंटेन होनी चाहिए ऑफ दैट पोजीशन, दैट हायरार्की, क्योंकि हम लोग एक जर्नी कवर करके आए हैं. बट नन अदर देन उनमें से कई लोग तो मुझसे बड़े भी हैं जो कि फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के हैं. तो एक वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं मेंटेन होनी चाहिए. What are you thinking? Same as Karthik, क्योंकि from starting of our journey, like when I was in first year, the same environment was given to us. Like हमें ना कभी ऐसे वो नहीं बोला था कि अरे ये हेड हैं तो इनसे बात नहीं कर सकते या इनको ऐसे इनसे ऐसे ही बात करनी है. We were very friendly with our former to former heads, our former heads. और मैं वैसा ही environment अपने members के लिए भी बनाना चाहती हूँ कि they come to us and they can say anything they want. अगर उनके personal life में भी कुछ दिक्कत है तो I don't mind कि वो मुझसे discuss कर रहे हैं. So that kind of environment we build in sponsorship and I think that is the thing जो उनको मतलब एक पासवे भी देती है कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं. क्योंकि हम हायरार्की हम समझाते हैं उन्हें कि हाउ टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट रिस्पेक्ट शुडंट कम इन अ वे कि आप उनसे डर रहे हो. यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी. दैट डरना सबके लिए नहीं होता. That respecting doesn't hinder the communication. Yes. So yeah, this is the way we lead. So kind of आप लोग अपनी legacy को आगे बढ़ा रहे हैं अपने former. Yes, for sure. Very great idea by the way. And मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब तक तो आपको हेड बने हुए, मतलब बेसिकली मेंबर टू हेड आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है अभी तक. So how was your journey? How did you feel it? Like I am from the point I joined this college, I am in sponsorship club. Like जब आप लोग मेंबर्स के टाइम पे वो होते हो ना, एनरोल होते हो, मैं तब से हूँ स्पॉन्सरशिप क्लब में. एंड आई हैव लिव्ड माय कॉलेज जर्नी, कॉलेज लाइफ थ्रू स्पॉन्सरशिप. सो आई लव sponsorship club and I love the idea that I am head now. So yeah, my journey has been very good. You can say बहुत ज्यादा ही बढ़िया, कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर मेरी कॉलेज लाइफ में स्पॉन्सरशिप क्लब नहीं होता तो हाउ बैड माई कॉलेज लाइफ वुड हैव बीन. सही में नहीं, रियली करेक्ट. मेरी लाइफ में भी एज जोशना सेड, कॉलेज लाइफ रियली एग्जिस्ट विद द नेम स्पॉन्सरशिप क्लब, बट
In the first year, I enrolled in 2 clubs, Artistico and sponsorship team. Then, due to some reasons, I got interest in sponsorship club only, and it was really, I am really happy कि I chose sponsorship club, cause मैं फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था स्पॉन्सरशिप टीम में, और मैं बहुत ही इनएक्टिव मेंबर्स था, आता भी नहीं था कभी कभी. तो लेटर आई गॉट एक्टिव, धीरे धीरे मैं यहाँ पे लोगों से मिला एकदम एंड में. देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ कोऑर्डिनेटर. देन आई गेव माई 100% एज अ कोऑर्डिनेटर फ्रॉम माई साइड, और देन अब हेड बन गए. तो आई ऑल्सो गिव माई 100% कि मैं अपनी टीम को, अपनी को हेड के साथ एक बॉन्डिंग को, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ एक हायरार्की को, सबको एक मैनेज करके चलूं. And one thing to mention, he said that there was a reason because of which I got very active in sponsorship. वो reason money था, ठीक है. And the second thing he said कि मैं आता भी नहीं था. ये हर event के बाद मुझे कॉल करता था और पूछता था ज्योत्सना क्या हुआ इस event में. Like he didn't used to come, ठीक है, but he wanted to know everything. तो ये बस मेरे को कॉल करता था, और ये किसी को जानता भी नहीं था बिकॉज ये आता नहीं था. तो ये मेरे को कॉल करता था एंड ही यूज्ड टू से ज्योत्सना क्या हुआ ये इवेंट में, शुरू से अंत तक सब बताना मेरे को. इन द मेजर इवेंट्स में आता था कि मतलब पिचिंग हो गई जहाँ पे केवल स्पॉन्सरशिप टीम रिप्रेजेंट कर रही है. हम लोगों ने एक अपना पूरे टेन्योर में, मेरे वाले में जब मैं मेंबर था, एक ही इवेंट करवाया था, द वॉइस ऑफ कैंपस. इन दैट इवेंट एक टीम थी, आर्टिस्ट मैनेजमेंट टीम, जो परफॉर्मर्स थे, दैट वाज फुल्ली मैनेज्ड बाय मी. ऐसा नहीं है कि मेंबर के टाइम पे कुछ ही नहीं किया, बट थोड़ी सी प्रेजेंस कम थी, कॉज आई यूज्ड टू अप डाउन फ्रॉम दिल्ली. और ये वाला रीजन बहुत सही है कि व्हेन आई एनरोल्ड, एक्टिव वाली चीज नहीं, व्हेन आई एनरोल्ड इन स्पॉन्सरशिप टीम, सो मैंने सिर्फ 2 ही शब्द सुने. एक तो यार तुम्हारे को 10% मिलेगा जो भी तुम डील लाओगे उसका, और तो और दूसरी चीज कि वो डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है, वो किसी का उसमें कोई वो ही नहीं है बीच में कट. तो मैंने कहा दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग. तो फिर आपने कहा कि लेट्स डू इट. नाम क्या कि गुप्ता लगता है, मैं बनता हूँ. नहीं, मैं बनिया तो नहीं हूँ, बट आई लव मनी. Everyone loves money. Yeah. But never mind. So next question, देखो आजकल के टाइम में पिच करना, I mean basically not पिच कहूंगी, बट आज तक कल के टाइम पे अपनी बातों को सबके सामने रखना हर किसी को आता है. बट आपकी स्पॉन्सरशिप क्लब में आने के बाद हाउ दैट चेंजेस कि हाँ मतलब क्या स्पेशलिटी आती है उन चीजों में. Okay, so basically what we teach is nothing but confidence in your voice, ठीक है. हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं सिखाते कि आपको, लाइक हम फॉर्मेट बताते हैं कि आपको एक स्पॉन्सर से जब आप पहली बार मिलते हो या उनसे बात करते हो तो आपको बात कैसे करनी है. बट द थिंग इज व्हाट वी टीच, मेनली व्हाट वी फोकस ऑन इज कॉन्फिडेंस, कि बंदा डरे ना बात करने में. बाकी आप, मैं, 2 इंसान ही है, स्पॉन्सर भी इंसान ही है, हम कैसे भी बात कर सकते हैं, बात समझ जाएंगे. बट द थिंग इज कि मुझे अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सामने वाला समझे कि या आई कैन ऑफर समथिंग टू हिम, दैट्स इट. अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछती हूँ, तो जैसे कि आपने बात करी यूनिफेस्ट के बारे में, तो यूनिफेस्ट में जनरली बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है, आई गेस, जितना मैं समझ सकती हूँ. तो उसमें मैं ये कहूंगी कि आपका आज तक का बिगेस्ट डील आपने क्रैक करी है, एंड हाउ डिड यू क्रैक इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवेंट फंडिंग होती है एंड स्पॉन्सरशिप इज 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. इवेंट फंड इज डिफरेंट एंड स्पॉन्सरशिप इज डिफरेंट. स्पॉन्सरशिप डजंट कवर द इवेंट और एनीथिंग, ठीक है. एंड आई थिंक द बिगेस्ट स्पॉन्सर वी हैव गॉट टिल नाउ is of 1.5 lakh Yeah, in a where? single amount. Okay. I don't That was know, a we can gaming take the app. That was a company. gaming app, but Yeah. I can't reveal the company Yeah, name. company name is like, Yes. नो प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जानना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको या तो कोई रूट स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, या फिर कभी कभी जल्दी रिप्लाई नहीं आ पाता, फिर आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर जवाब नहीं आ पा रहा. हाउ डू यू. नहीं, पहले ऐसा होता था बिकॉज वी यूज टू कॉन्टैक्ट ओनली 4-5 पीपल, और उनमें से अगर 2 का रिप्लाई नहीं आया तो वी यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. अभी ना हमारे बच्चे जो हैं वो ईमेल 100 ईमेल्स करते हैं एंड वी से कि उसमें से 1 का ही रिप्लाई आएगा, ठीक है. अगर 2 आ गया तो वो खुशी हो गए, ठीक है. तो हम उनको एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ा ही नहीं रहे. वी नो कि नॉट एवरीवन इज रेडी टू स्पॉन्सर एनीबॉडी या एनी यूनिवर्सिटी, नॉट
talking about Galgodia's university, but not every brand is ready to sponsor, या not in the criteria that they want to sponsor, या उनका ब्रांड ही ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सिटी में आ सके. तो हम पिच तो सबको कर देंगे, बट जिनका इंटरेस्ट हो वो ही आएंगे. तो हम ऐसा तो निराशा वाली चीज नहीं है कुछ कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट हाँ ये वाला फैक्ट है कि बहुत कम लोग ही रिप्लाई करते हैं. नहीं, आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि मेरे को अगर नो लिख के भेज दो, मतलब मैं काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड पार्ट रहता है मेरा स्पॉन्सर से कि भाई प्लीज मेरे को नो लिख के भेज दो, बट सीन पे एक तो मैसेज मत छोड़ो भाई. आई रियली वांट कि मेरे को नो प्लीज. आई एम वेरी मच ओपन टू रिजेक्शंस, बट इग्नोरेंस में मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है. But most of the company do this whole घूस वाला थिंग, ठीक है, वो नो लिखने का एफर्ट नहीं डालते हैं, ठीक है. तो आई टेक इट एज रिजेक्शन ओनली. और हमें ना ऐसे जब हम पिचिंग पे जाते थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पिचिंग पे जाते थे, एंड सब मतलब मुझे याद है कि मेरे साथ का कोई था एंड ही वाज पिचिंग टू समबडी, एंड उनको तो ऐसे बोल दिया क्या कर रहे हो तुम, मेरे साथ बैठो, मैं तुमको इससे ज्यादा पैसे दूंगा, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी आल्सो यूज टू गेट. तो हम रिजेक्शन से भी बहुत ऊपर हमें रिएक्शंस मिल चुके हैं. तो आई डोंट थिंक कि दिस मैटर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. एंड इफ वी अप्रोच some brand from the student perspective, from the university perspective, तो they goes like कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये, या फिर किसी के मन में ये आ जाता है कि भाई ये तुम क्या काम कर रहे हो, क्यों पिचिंग इतने एफर्ट्स क्यों दे रहे हो तुम, है ना. देयर वॉज वन आवर एक्स कोऑर्डिनेटर ऑल्सो, और उसको लिटरली बैठा के कोका कोला पिलाई पहले, एंड देन दे आस्क्ड हिम कि भाई ये क्या कर रहा है तू, बंद कर इसको और कुछ काम धाम कर. These are the words. But I really say कि campus marketing is something that is not very much understandable thing for many people. When you do the campus marketing, you don't only connect to those people जो कि ऐसे vendors हैं या फिर छोटे businesses हैं. आप ऐसे बड़े brand से भी coordinate करते हो, ऐसे बड़े brand से भी बात करते हो जो कि आपको that can lead to various opportunities in the future. Yes. Today I am intern in KPMG and I am having internships in my hand. If I want, I can allot those internships to people, not in KPMG, in different brands that are student marketing opportunities that I have in my hand only. Ki if I see someone who is very much capable of those opportunities, I allot the company, I can refer to the company that this is the person who is very much eligible for this job, you can take them, and they will take that person only. So these are the opportunities that you get from the here. Yes. The 10% cut is not something that this team is working for. This team is working for the opportunities that we build, that we create in this university. तो वैसे स्पॉन्सरशिप क्लब में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे इंडिविजुअल काम करते हैं इन द टीम? Yeah, individually also, but they are as a team only. In starting, you have to work in a team only. Yes. Because in team there are 4 people. कोई एक कमी करेगा तो दूसरे उसकी कमी पूरी कर देगा. ओके, तो आज का पॉडकास्ट खत्म करते हुए लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपका स्पॉन्सरशिप क्लब एक पर्सनालिटी होता तो आप उसे किस वर्ड से डिफाइन करते? Sincha. Like I love Sincha, I love sponsorship, and I think sponsorship से मैं कुछ और नहीं कह सकती, बट कह सकते हैं कि मिस्चीवियस क्लब कोई और नहीं है, ठीक है, कि ये भी करा रहे हैं, वो भी करा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, ठीक है. तो Shinchan would be the best personality I can give to sponsorship. कार्टून ही अगर बताना है ना तो डोरेमोन can deliver anything and can do anything. Thank you so much, Lovets, for your precious time, and thank you so much, audience, for tuning in. I am your host, Pragyaja, signing off.